ذہنی سکون کا سب سے زیادہ دار و مدار برے کاموں سے خود کو بچائے رکھنے میں ہے۔ وہ لوگ جنہیں خود پر قابو نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں پریشانیوں سے بھرپور گزرتی ہے۔ ذہنی سکون صرف اچھے کام کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ اگر آپ صبح کو بستر سے اٹھنے میں سستی محسوس کریں تو ایک بار سوچیں کہ جس کام کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا ہے، میں وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے نرم اور گرم بستر میں آرام کرتے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کو آرام کرتے رہنا ہے یا محنت کرنی ہے۔ اگر آپ ایک دن کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں اور اس عادت کو 3 یا 4 ماہ تک مسلسل اپنائے رہیں تو آپ اپنی صحت میں ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ عاجز رہیں، ورنہ زمانہ آپ کو عاجز بنا دے گا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے ساتھ مغرور انداز میں پیش آنے کی بجائے دوستانہ رویہ رکھیں، کیونکہ ایک مغرور انسان کا برتاؤ اس کے غلام بھی بمشکل ہی برداشت کر پاتے ہیں۔ اپنے دل میں زیادہ چیزوں کی تمنا مت رکھیں۔ اپنے ذہن کی کچھ یوں تربیت کریں کہ یہ ہر موقع پر آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے تو یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنے میں خاصی مدد دے گی۔ توجہ ایک چیز پر رکھنا ایک عادت ہے، اور اگر آپ اپنی توجہ کو ایک چیز پر نہیں رکھ پاتے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آپ کبھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات میں موجود قیمتی ترین صفات میں سے ایک توجہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات میں بہتری چاہتے ہیں تو غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اپنے آپ کو زیادہ باعلم ثابت مت کریں، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسے معاملات میں گھسیٹنا چاہے تو بھی گریز کریں۔ مشکلات کو جلدی حل کریں۔ اگر مسئلے کو بڑھنے دیا جائے تو پھر آپ کے لیے اسے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر جذبہ شروع میں کمزور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑنے لگتا ہے۔ میں خود پر ہمیشہ نظر دوڑاتا ہوں اور ہر گزرے دن کا ایک مفید انداز میں جائزہ لیتا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس لیے ناکارہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر نظر نہیں دوڑاتے، جائزہ نہیں لیتے۔ اگر آپ کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے ان چیزوں کی جانب متوجہ ہونے لگیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں تو جان لیجئے کہ آپ نے اپنے مقصد کو بگاڑ ڈالا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو آرام بھی دینا چاہیے۔ کچھ دیر آرام کے بعد اس کی کارکردگی بہتر طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں زرخیز زمین پر زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے زمین بہت جلد اپنی زرخیزی کو کھو دے گی۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے دماغ کو ان نعمتوں کے شمار میں مصروف کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور سوچئے کہ اگر یہ بھی آپ کی دسترس میں نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے کتنی زیادہ تمنا رکھتے۔ اپنے بارے میں زیادہ بات مت کریں۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں اور کمزوریوں کا زیادہ ذکر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے چاہے کتنا ہی پر لطف ہو، لوگوں کے لیے آپ کے معاملات کو سننا اتنا خوشگوار
नहीं होता। जो वाकया कल हुआ या 5 मिनट कबल हुआ, ये दोनों ही अब माजी का हिस्सा है। हम जब चाहें एक नया आगाज ले सकते हैं, तो हम आज ही नई शुरुआत क्यों ना करें। आपका दिमाग सबसे कीमती असासा है। इसे समझने और इस पर मेहनत करने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और अगर एक बार ये गुजर जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्या आप आज के इस दिन को भरपूर अंदाज में गुजारेंगे? क्या आप आज के दिन में अपनी भरपूर मेहनत करना चाहेंगे? नेकी की रोशनी बहुत दूर तक दिखाई देती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कामयाब लोगों को देखे तो कहते हैं कि ये लोग क्यों कामयाब हैं, मैं क्यों नहीं हूं। और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो कामयाब लोगों को देखकर कहते हैं कि अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। इंसान को 3 चीजों में समझदार और तजुर्बाकार होना चाहिए। नंबर 1, किसी भी शख्स को अपनी ख्वाहिशात की बेजा पैरवी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अपने फराइज की अदायगी में इंसान को कोताही से काम नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, अपनी जात को दुनिया के फरेब से महफूज रखते हुए दुरुस्त और अक्लमंदाना फैसले लेने चाहिए। मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करना, बेचैनी में मुब्तला होना, ये एक इंसान के लिए नुकसानदेह है। इंसान तो यही चाहता है कि जिन चीजों की तमन्ना की जाए वो हमेशा उसके पास रहे, लेकिन ऐसी सोच के साथ इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। एक दाना इंसान मुश्किलात का सामना जरूर करेगा, लेकिन हमेशा इन मुश्किलात को अपने लिए चुनना नहीं चाहेगा। वो इन मुश्किलात का सामना जंग की बजाय खंदा पेशानी से करना पसंद करेगा। हालात की बिना पर आपको गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हालात को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपके रद्द अमल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाचे खुद को परेशान करने से गुरेज करें और हालात से निकलने का हल तलाश करें। नर्म गुफ्तार जुबान एक कीमती असासा है। मैं इसे ताकत का दर्जा देता हूं। तो एक अच्छा इंसान कैसे बनता है? इंसाफ और नाइंसाफी में से इंसाफ को चुनो। नर्म मिजाजी और बेअसूली में से तुम्हें नर्म रहने को चुनना चाहिए। खुद पर काबू रखने और नफ्स को बेलगाम छोड़ देने में से तुम्हें यकीनन खुद पर काबू रखने का इंतखाब करना है। जब तुम अपनी शख्सियत में ऐसी तब्दीलियां लाने की कोशिश करोगे तो यकीनन तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। और अगर कोई चीज आपके हाथ आने से कबल ही किसी और के पास चली गई है तो कोई बात नहीं, उस चीज के आपके पास आने का वक्त अभी नहीं आया। किसी मखसूस सूरत हाल में किसी दुश्मन का आपके लिए बिछाया गया जाल ही ये हो कि आपको तैश दिलाकर आपसे कोई गलत काम सरजद करवा दिया जाए। जब भी आप किसी ऐसी चीज में खुद को शामिल करना चाहें जो कि बज़ाहिर बेज़रर हो, तो एक बार मुनासिब अंदाज में गौर जरूर करें, क्योंकि वही चीज आपकी तबाही का बाइस बनती है। अगर आप जहन में गलत सोच रखेंगे तो आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ गलत देखने को मिलेगा। अगर आप एक बार शिकस्त का सामना करने के बाद ये इरादा करें कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपने कामों में कोई तब्दीली न लाएं, तो ये जान लें कि आप कमजोर तर होते जाएंगे। हर सूरत हाल के 2 रुख होते हैं,
एक वो जिससे मामला सुलझाया जा सकता है और एक वो जिससे मामला नहीं बेहतर हो सकता। अगर आपका भाई आपके साथ गलत बर्ताव रखे तो आप उसके गलत रवैये को जहन में ना रखें, क्योंकि ये सूरत हाल का वो रुख है जो कि इस मसले का हल नहीं है। इसकी बजाय दूसरे रुख को देखें कि वो आपका भाई है, आप दोनों का बचपन इकट्ठे गुजरा है। जब आप इस रुख को देखेंगे तो आप सूरत हाल को सुलझा पाएंगे। हमें बहुत सी ऐसी चीजों, आदतों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें अच्छा समझते हुए हम उनके आदी बन चुके होते हैं। बसूरत दीगर हम वो सब कुछ खो सकते हैं जिसका इंसान के पास मौजूद होना जरूरी है। मुतासिर होने की बजाय मुतासिर करना सीखें। हमें दूसरों से मुतासिर होते रहने की बजाय खुद से कुछ ऐसे यादगार काम भी करने चाहिए और उन लोगों की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए जिन्हें लोग बहुत ज्यादा सराहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के ताक़ुब में हैं जिसका हुसूल मुमकिन नहीं, तो इसे पागलपन कहा जाएगा। लेकिन एक आम इंसान इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता है, और यही आप में और एक आम इंसान में फर्क का पता चलता है। अगर कोई तजुर्बा आपके लिए गलत था तो जरूरी नहीं कि वो और लोगों के लिए भी गलत हो। इसी तरह अगर कोई चीज आपके लिए फायदेमंद थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो और लोगों के लिए भी फायदे का सबब बने। आपने यकीनन बहुत से मुसाइब का सामना किया होगा और इसकी वजह यह है कि आपने अपने दिमाग को वो काम नहीं करने दिया जिसके लिए ये बना हुआ है। अगर कोई इंसान बददयांती करता है और आप भी उसके साथ बददयांती का मामला रवा रखते हैं तो आप इन्हें सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही अब झूठे हैं। बहुत से लोग खौफज़दा रहने की वजह से नुकसान उठा लेते हैं और बहुत से लोग मुस्तकबिल का खौफ ज़हन में रखते हुए ही आने वाले कल को बर्बाद कर लेते हैं। असल खिलाड़ी वो होता है जो मनफी ख्यालात के खिलाफ खुद को हमेशा तैयार रखे, खुद को मजबूत रखे और अपने ख्यालात को खुद पर हावी मत होने दे। खुद को बेहतर करना, आजादी पाना, खुशी और सुकून का हुसूल, इन सब को पा लेने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत होती है। अपने रास्ते को पहचान कर फिर उसके साथ जुड़े रहने में ही सुकून और राहत मिलती है। जहां जहां जरूरत पड़े वहां हमें मतलूबा तब्दीलियां करते रहना चाहिए, लेकिन उन चीजों से खुद को बचाए रखना चाहिए जो कि हमारे असल मकसद से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। भले मौसम गर्म हो या सर्द, आप थके हुए हो या ताजा दम, आपकी तारीफ की जा रही हो या आपको बुरा भला कहा जा रहा हो, मौत की सख्ती या जिंदगानी के मामलात का कोई दबाव हो, आपको अपना फर्ज ऐसन तरीके से निभाना है हत्ता कि मौत हमारी इस दुनिया का एक इंतहाई अहम अंसर है, लेकिन फिर भी हमें अपने फराइज की अदायगी में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। एक शख्स ऐसी तबीयत का मालिक होता है कि जब वो किसी के साथ अच्छाई करे तो बदले में फौरन किसी ना किसी सूरत में अच्छाई की उम्मीद रखता है। दूसरी किस्म का शख्स फौरन तो नहीं, लेकिन उस शख्स को अपना मकरूज जरूर समझता है और उससे जवाब में अच्छाई की उम्मीद रखता है। तीसरी किस्म का शख्स ऐसा होता है जो इस अच्छाई को करके भूल जाता है, जैसा कि एक घोड़ा दौड़ के बाद अगली दौड़ के लिए तैयार होता है। ऐसा शख्स जब अच्छाई करता है तो उसका ढंढोरा नहीं पीटता करता, बल्कि खामोशी से दोबारा अच्छे काम करने लगता है। जो लोग सीखने में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं
वो अक्सर व बेशतर बुनियादी चीजों और उसूलों को याद नहीं रख पाते। इसलिए सीखने के अमल में जल्दी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता और आजिज़ी के साथ चलें। जिन लोगों के यहां दौलत की फरावानी नहीं होती, वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास रुपया पैसा होता तो हमारे फलां फलां मसाइल हल हो जाते, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। बैरूनी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी मसाइल को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे एक शख्स अपनी जरी जमीन से बेहतर पैदावार लेने के लिए मेहनत करता है और दूसरा शख्स अपने घोड़े की अच्छी नशोनुमा के लिए फिक्रमंद होता है, वैसे ही मैं अपनी शख्सियत में दिन ब दिन आने वाली बेहतरी को देखकर लुत्फअंदोज होता हूं।